Good evening, students. Welcome to yet another lecture of your physics chapter number 3, motion in a straight line. Today we will discuss a very fundamental topic of velocity time graph. I'm saying fundamental because the concept building of this velocity time graph or any other graph is of prime importance in studying physics. Okay, so here what we are trying to understand today is velocity time graph, and based on this velocity time graph we'll also derive graphically the three equations of motions. Okay, so velocity time graph ये क्या होता है? Let us first understand that, है ना, very simple चीज़, x एक्सिस में हम टाइम को ले लिए, है ना, the change of time is in x एक्सिस, y एक्सिस में वेलोसिटी को ले लिए और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये होगा velocity time graph. Now in case of uniformly accelerated motion, है ना, जो कि हमारा ये जो चैप्टर is based on the concept that we are dealing with uniformly accelerated motion. In case of that, the variation of velocity and time, with time is shown in a velocity time graph. Suppose we consider there is an object which at time t is equal to 0 is moving. Here t is equal to 0 is moving with a velocity of v naught. At the t is equal to 0, this object is moving with a velocity of v naught, and at time interval of t, after time t, it has achieved a velocity of v. Okay, so let v naught and v be the velocity of an object at time t is equal to 0 and t is equal to t respectively. Okay, so a and b are representing those two velocities. So a, the velocity of object at a is v naught, or agar what I can do is I can drop परपेंडिकुलर्स, है ना, ताकि मुझे ये इसके टाइम एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट मिल सकता है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉप परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी से एक टाइम एक्सिस में मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ. ओके, और वाई एक्सिस में भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, और आगे काम आ जाए इसलिए एक परपेंडिकुलर मैं ए से और ड्रॉप करता हूँ. आई विल नेम दिस, ये जो जितने भी कंस्ट्रक्शन है इसको मैं नेम कर देता हूँ, है ना. सी दिस पॉइंट इज डी एंड दिस इज ऑलरेडी ओ, ओरिजिन ओ डी, एंड आई विल ऑल्सो नेम दिस पॉइंट एज सी. ओके, नाउ दिस, यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है, इट इज टी, और यहाँ पे t इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइम इंटरवल 0 है. ओके, सो हियर इनिशियल एट पॉइंट ए द वेलोसिटी इज v नॉट एंड एट पॉइंट बी द वेलोसिटी हियर इज सपोज v. चलो इतना कंस्ट्रक्शन हम कर लिए. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग which this graph shows, so this graph here AB is a straight line. That means this object is moving with a constant acceleration. It's moving with a constant acceleration, and this slope with respect to the time axis, this is an angle. It is making an angle theta. ओके, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा. स्लोप के बारे में हम बाद में आते हैं, तो पहले इस फिगर में हम समझ ले सब चीज़ों को, उसके बाद में व्हाट वी कैन डू इज हम सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को करेंगे. नाउ हियर ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए क्या है, वी नॉट है, और ओ या यहाँ पे बी डी, व्हाट इज बी डी, बी डी इज द फाइनल वेलोसिटी वी. ओके, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, final velocity v. Okay, time interval t minus 0 t, यानी OD and AC is equal to
टी। तो ये सब चीज़ हम लिख देते हैं ताकि हमको ये आसानी से पता चले। ओके, सो इन दिस फिगर OA is V0. Okay, OA is V0, BD is V, BD is V। ये तो क्लैरिटी हो गई। ओके, हमने ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। सो नाउ व्हाट आई कैन से, OD is equal to AC is also the same, equal to T minus 0. Okay, OD AC is equal to T minus T equal to 0. So it is just T. Okay, the length here is OD or AC, the length of OD or AC is T. Length of OA is V0, length of BD is V. ये हम बार बार इसको बता रहे हैं। Okay, so here what is this BC? Okay, I can write BC is equal to BD minus CD or BD minus OA, यानी BC is equal to BD है V और OA है V0, V minus V0. This BC is V minus V0. ओके, इतना आपको पता चल गया है ना। AC is equal to T, OD और AC is equal to T and BC is equal to V minus V0, है ना। And this line, this graph is making an angle theta with respect to the T axis. Now, as per the concept, the slope of velocity time graph, is the acceleration. In uniformly accelerated motion, the slope of velocity time graph is equal to acceleration. The slope of velocity time graph is equal to acceleration. Okay, यानी कि slope, अभी slope में in triangle, in this right triangle ABC, in right triangle ABC, tan theta, okay, tan theta is equal to BC upon AC. Yes, and what is tan theta? Tan theta is slope. Okay, it is slope, tan theta BC. What is BC? हमने अभी अभी निकाला, BC is V minus V0 and AC, what is AC? AC is T, है ना। तो अभी अभी हमने बोला कि इन राइट एंगल ट्रायंगल for a uniformly accelerated motion, the velocity time graph shows the slope of the graph will be acceleration. The slope of the graph will be acceleration. तो यहाँ पे slope या tan theta की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ? A is equal to V minus V0 upon T. ग्राफिकली हम ये देखने वाले हैं कि the first equation of motion मुझे यहाँ पे मिल गया। कैसे मिल गया? से V minus V0 is equal to AT और V is equal to V0 plus AT. तो ग्राफिकली आई हैव फाउंड आउट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। हमने इस ग्राफ से देख के बता दिया कि भाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इलेप्स्ड। ये फर्स्ट इक्वेशन हमको से मिल गया। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए हमको ये भी पता है कि द एरिया अंडर दिस कर्व is the displacement. For a uniformly accelerated motion, the area under the curve of velocity time graph shows the displacement. तो ये पूरा जो एरिया है यानी कि ABDO,
इसका जो एरिया है ये क्या हमको बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हम जब क्लास 9 में इसको पढ़े थे तो उसको क्या बोलते थे, डिस्टेंस। ओके, सो आई विल जस्ट मेक सम स्पेस और हम यहीं पे देख लेते हैं कि सेकंड इक्वेशन के लिए ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व ए बी, इसके नीचे जो एरिया है ये क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं displacement is equal to area of this trapezium ABDO। ओके, इसका एरिया ABDO। ओके, नाउ ये एरिया को हम कैसे कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिए और एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ये निकाल लें तो हमको इसका टोटल एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO। ओके, एरिया ऑफ, अब ये डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ लिख सकते हैं S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ base is AC into altitude is BC, okay, plus this area of this rectangle I can take it OD into OA और S is equal to half AC क्या है, T, और BC क्या है, V माइनस V नॉट। ओके, प्लस OD क्या है, T, और OA क्या है, V नॉट। ओके, नाउ V माइनस V नॉट, इसको हम यहाँ से देखें, V माइनस V नॉट इज इक्वल टू 80। ओके, V माइनस V नॉट इज इक्वल टू 80। अगर मैं V माइनस V नॉट की जगह ये 80 रख देता हूँ तो कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं S इज इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू 80 प्लस V नॉट T। ओके, सो ये क्या हो गया, हाफ T और मल्टीप्लाइड बाई T इज T स्क्वायर और A, सो हाफ AT स्क्वायर प्लस V नॉट विच इज एक्चुअली आवर second equation, S is equal to V naught T plus half AT square, and this is the second equation of motion which we have proved graphically. Okay, first equation of motion, second equation of motion. So S is equal to V naught T plus half AT square. For third equation of motion I need to make some space and then we'll continue. For third equation of motion, we'll go back again into the displacement. The area under this curve is displacement. Okay, I will write here displacement will be the area of this trapezium ABDO. Now from geometry I know the area of, the formula for area of trapezium is this parallel sides, the length of the parallel sides, addition of the length of the parallel sides multiplied by the perpendicular distance, ये होता है area of trapezium। That means OA plus BD मल्टीप्लाइड बाय OD। ओके, सो यहाँ पे मैं ये लिख सकते हूँ, यहाँ पे एरिया कैसा हो गया, OA प्लस हाफ, सॉरी इसमें हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स दैट इज OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर AC। परपेंडिकुलर में AC कर सकता हूँ या OD भी लिख सकता हूँ, है ना।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, OD भी लिख सकते हैं, चलो OD लिख देते हैं। ओके, OA प्लस BD, हाफ OA प्लस BD इंटू OD। तो यहाँ पे हाफ OA इज V0 प्लस BD इज V, okay, into OD is T, okay, OD is T. Now we'll recall something, ये जो T है हमने पहला वाला जो देखा था, E is equal to V minus V0 upon T, okay, तो मैं T का वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, T is equal to V minus V0 upon A, ओके, ये हो सकता है T की वैल्यू V माइनस V0 अपॉन A। हाँ, तो ये हम क्या करेंगे, दिस इज S, इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ, S इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे लिखता हूँ V प्लस V0 ये लिखता हूँ मैं V प्लस V0 मल्टीप्लाइड बाय V माइनस V0 on A, okay, so S is equal to 2A, यहाँ V plus V0, V minus V0, A plus B into A minus B is equal to A square minus B square, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, V square minus V0 square upon 2A, S is equal to V square minus V0 square, so this implies this S is equal to, और वी कैन से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर, एंड हेंस आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज V स्क्वायर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर प्लस 2AS, एंड हेंस this also has been graphically proved. So we have taken velocity time graph, we understood the basics of velocity time graph, and we have also derived the kinematic equations of the motion, 3 kinematic equations of the motion in a graphical method. Okay, now we'll have certain more interpretation of velocity time graph. So let us have certain interpretation of velocity time graph. इस velocity time graph को देख के आपको ये समझ में आना चाहिए कि what it is showing. So we will go point by point. The first point here is in the interpretation of velocity time graph that a velocity time graph cannot be perpendicular to the time axis, है ना। पहला चीज़ क्या है, the velocity time graph cannot be perpendicular to the time axis. ये time axis है ना, तो कोई ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता। सपोज मैं यहाँ पे ऐसा एक ग्राफ बना देता हूँ विच इज़ परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, ऐसा ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। एंड वाई इट्स नॉट पॉसिबल, सी फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, सपोज दिस इज कोई इंस्टेंट है टाइम टी का, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एट द सेम इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू सर्टन वैल्यू टू इन्फिनिटी। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम में सपोज t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चली गई। इज इट फिजिकली पॉसिबल? इट्स नॉट, है ना। सो दैट इज वाई इट कैन नॉट बी परपेंडिकुलर, द ग्राफ कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस। दिस इज द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। बट अब मैं पूछूं क्या परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या पैरेलल हो सकता है? कैन द ग्राफ बी पैरेलल? पैरेलल हो सकता है क्या? या दैट मीन्स इट इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस? यस इट कैन। हाँ, ऐसा एक ग्राफ बन सकता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? यहाँ पे हम देख रहे हैं विथ टाइम द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट्स नॉट चेंजिंग। v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। ऐसा आप अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सपोज़ मैंने गाड़ी को फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट किया, यानी उसकी जब स्पीड वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, उससे एक्सेलरेट किया, एक स्ट्रेट रोड में जा रहा हूँ। स्ट्रेट रोड में जाने के बाद में एक सेफ स्पीड मैंने ले ली कि भाई मैं अब 40 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से चलूँगा।
तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर को हम एक सेट कर देते हैं, उसको अब हिलाते नहीं हैं, उसको हिलाते नहीं है। तो आई एम नॉट गिविंग द व्हीकल एनी एक्सेलरेशन, उसको एक्सेलरेशन नहीं दे रहा हूँ ताकि उसकी जो वेलोसिटी है कॉन्स्टेंटली उस 40 किलोमीटर्स पर आवर पे दे। तो यानी यहाँ पे हम ये v इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया 40 किलोमीटर्स पर आवर। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ। तो इससे मैं इंटरप्रेट निकाल सकता हूँ a इज इक्वल टू 0। इस ग्राफ से हम ये इंटरप्रिटेशन निकल सकता है कि एक्सेलरेशन इज 0। आई एम नॉट एक्सेलरेटिंग द व्हीकल, आई हैव एक्सेलरेटेड द व्हीकल टू अ सर्टेन वेलोसिटी, है ना, और उसके बाद उस वेलोसिटी में पहुंचने के बाद मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूं। तो मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ओके, सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ग्राफ। ओके, सो थर्ड इज, अगर मैं कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा हूँ उसको, मैं कॉन्स्टेंटली उसको बढ़ाते जा रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली बढ़ाते जा रहा हूँ, है ना। सो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं क्या मिलेगा मुझे, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसको कैसे दिखाएंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को एक स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखाएंगे। सो दिस इज हियर कांस्टेंट, ओके, बट इट्स वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, वेलोसिटी तो बढ़ते जाएगी, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है विथ इक्वल लैप्स ऑफ टाइम, इसका ये जो है वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। तो दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बट व्हाट आई कैन शो, वी कैन हैव नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑल्सो, है ना। नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसा होगा, जैसे यहाँ पे द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इसका जो यहाँ पे अगर मैं इसका जो स्लोप निकालूंगा, है ना, तो इसका स्लोप हर पॉइंट में सेम रहेगा, इसका स्लोप हर पॉइंट में सेम, क्योंकि ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, दिस स्लोप ऑफ दिस कर्व, तो यहाँ पे इसका एंगल चेंज नहीं हो रहा है। सपोज मैं इसी कर्व को ऐसे बनाता हूँ, है ना, तो इस कर्व को मैंने ऐसे बनाया, तो इसका इंटरप्रिटेशन मैं कैसे निकालूंगा, भाई स्लोप, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका स्लोप क्या होगा, ये टेंजेंट यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये उसका स्लोप होगा, है ना। तो ये एंगल, इट इज़ मेकिंग सर्टेन एंगल हियर θ1, ओके। बट इस पॉइंट में अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो इसका अगेन इट विल बी अ टेंजेंट लाइक दिस अप टू दिस कर्व, ओके। और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो θ2 है इट हैज़ इंक्रीज्ड, θ2 हैज़ इंक्रीज्ड। इस पॉइंट में करूँगा तो इसका ऐसा चला जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ अगेन द θ हैज़ इंक्रीज्ड, है ना। बस इतना हो सकता है कि ऐसा स्ट्रेट नहीं जाएगा, है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, ऐसा जाएगा। सो द हियर व्हाट आई कैन सी, द एंगल, द स्लोप इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। क्या देख सकता हूँ मैं, द स्लोप इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो व्हाट आई कैन इंटरप्रेट, दिस इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। व्हाट इज इट, दिस ग्राफ शोज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, है ना। फिर से बना देता हूँ मैं इसको। व्हाट इट इज शोइंग इज, इट इज शोइंग एन इंक्रीज इन एक्सेलरेशन, और इंक्रीज इन एक्सेलरेशन मीन्स इसका वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगा, है ना। कन्वर्सली अगर इसका उल्टा, है ना, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मुझे कैसे दिखेगा, सपोज यही ग्राफ को मैं उल्टे कर्व में ऐसा बना देता हूँ, तो व्हाट आई विल सी हियर, इट इज़ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन यानी इसका जो स्लोप की वैल्यू है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा हूँ तो इसकी स्लोप की वैल्यू कम होते जा रही है, यानी एंगल जो है कम होते जा रहा है। जैसे इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर मैं इसका एक टेंजेंट बनाता हूँ इस पॉइंट से, तो वह ऐसा बनेगा, है ना। लेकिन इस पॉइंट में जो बनाऊँगा उसका टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, एंड दैट मीन्स दिस एंगल हैज़ रिड्यूस्ड, है ना। θ2 हैज़ रिड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द θ2 हैज़ रिड्यूस्ड, यानी स्लोप इसका कम होते जा रहा है, दिख रहा है। तो दिस ग्राफ शोज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्या दिखाता है ये, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। सो व्हाट वी हैव इंटरप्रेटेड one impossible scenario in which in a velocity time graph that cannot be perpendicular to time axis,
इट कैन बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन। वी हैव आल्सो सीन अ ग्राफ विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, increasing acceleration and decreasing acceleration. So certain interpretations also has to be made for position time graph, उसको भी हम समझते हैं. So the variation of position with respect to time is shown in position time graph, इसको हम xt graph भी बोलते हैं, and the slope of xt graph shows the velocity, है ना. तो इसका जो slope है वो क्या दिखाता है, velocity दिखाता है. तो xt graph में again पहला जो हम पॉइंट देखेंगे, अगेन पोजीशन टाइम ग्राफ कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस. यानी फिर से मैं उसको वही बता देता हूँ कि पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर फिर मैं ऐसा एक टाइम एक्सिस से परपेंडिकुलर एक ग्राफ बनाता हूँ, इसका मतलब क्या है, फॉर दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम t इसकी पोजीशन यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकती है. यानी इसी सेम इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी अलग अलग जगह पे, एक सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम में अलग अलग जगह पे है वो, है ना. मोर देन वन पोजीशन है उसका इस टाइम इंटरवल में. क्या ये फिजिकली पॉसिबल है कि ये मैंने इसी इंस्टेंट में मैं यहाँ भी हूँ, वहाँ भी हूँ, वहाँ भी हूँ, यहाँ हूँ, मैं भगवान तो नहीं हूँ, है ना, मैं सब जगह नहीं हो सकता. यानी फिजिकली हम फिजिकल वर्ल्ड में अगर देखें तो एक बॉडी सेम टाइम इंटरवल में हर जगह तो नहीं हो सकता. सो दैट मीन्स इट इज़ इम्पॉसिबल ग्राफ, ये पॉसिबल ग्राफ नहीं है. सो दिस कैन नॉट हैपन. ओके, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन xt ग्राफ. तो फिर वही बात होगी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता तो क्या ऐसा हो सकता है ना. सपोज ये कोई वैल्यू है x1, तो ऐसा हो सकता है. यानी कि विथ टाइम इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. जैसे टाइम चेंज होते जा रहा है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. हाँ जी, द बॉडी एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. ताकि टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी चेंज नहीं हो रही. तो दिस इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, है ना. इट्स नॉट चेंजिंग. जिस जगह पे रख दिए उस जगह पे ही है, उससे अगर इधर नहीं जा रही उधर नहीं जा रही. तो दिस इज पॉसिबल एंड व्हाट वी कैन शो हियर इज दिस इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है इस बॉडी की, तो एक जो xt ग्राफ, यानी हमने जो बोला कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो xt ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ज़ीरो कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, वेलोसिटी वही है और एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है. उस केस में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमको. xt ग्राफ में क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. लेकिन अगर एक्सेलरेशन है कुछ उस बॉडी में तो हमको स्ट्रेट ग्राफ नहीं मिलेगा, हमको एक कर्व्ड ग्राफ मिलेगा. वो कर्व कैसे भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना. तो मैं अगर देखूं कि भाई अभी एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो मुझे क्या मिल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मिल रही है. कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो मुझे कैसा मिलेगा ग्राफ, ऐसा मिलेगा, है ना. दिस इज कांस्टेंट velocity and acceleration is ज़ीरो here. यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है. क्योंकि एक्सेलरेट होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. इट विल बी नॉट एन इक्वल डिस्प्लेसमेंट विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट विल बी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो. और हमको कांस्टेंट वेलोसिटी में हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना. ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है. ओके, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. नाउ अगर एक कांस्टेंट, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसा कर्व्ड लाइन है. सपोज द कर्व्ड लाइन इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस. व्हाट डज इट शो, है ना. मैंने आपको बताया कि इसका स्लोप हमको बताता है कि वेलोसिटी क्या है ना. इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी. तो ये इस पॉइंट ऑफ टाइम में इसका स्लोप ऐसा है और इस पॉइंट ऑफ टाइम में इसका स्लोप ऐसा है. अगेन सेम चीज़, सेम इंटरप्रिटेशन, इट इज़ इंक्रीजिंग वेलोसिटी. ये क्या दिखा रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी. ये ऐसा ग्राफ क्या दिखा रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी. और वैसा ही इसका अगर उल्टा कर दूं मैं, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है डिक्रीजिंग वेलोसिटी.
Okay, so increasing velocity, decreasing velocity. Now I'll show you certain graphs जो कि पॉसिबल नहीं है. वो क्यों पॉसिबल नहीं है उसको भी हम देखते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है. So I'll draw the first graph and the first graph is like this. Now this is not possible. क्यों not possible? For a say a certain instant of time here, what I can find here is इस टाइम में द ऑब्जेक्ट इज एट टू पोजिशंस. ओके, यहाँ पे x1 है और ये x2, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना. ये एक ही टाइम इंटरवल में, एक टाइम इंस्टेंट में, दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एट टू प्लेसेस. सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, है ना. एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एट टू प्लेसेस, है ना. भगवान हो सकते हैं लेकिन हम नहीं हो सकते. फिजिकल वर्ल्ड में ये वो पॉसिबल नहीं है. सो दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल. नाउ लेट मी ड्रॉ द सेकेंड ग्राफ. द सेकेंड ग्राफ अगेन इज दिस. हियर अगेन द सेम फंडा, है ना. अगर मैं किसी एक टाइम इंस्टेंस में लेता हूँ तो यहाँ पे सेम टाइम इंस्टेंट में दिस ऑब्जेक्ट इज एट टू पोजिशंस x1 एंड x2 विच इज अगेन not possible. So this also is not possible. Third instant we already discussed a graph perpendicular to time axis. यहाँ पे तो इस instant में the object is at many positions which is again not possible. Third instant हम देखते हैं कि अगर एक कोई ग्राफ ऐसा है, यहाँ तो हद ही हो गई. अगर मैं एक instant देखता हूँ यहाँ पे तो the object is at three positions which is again not possible. This is not possible. So you will get many questions in your competitive exams as well as in certain CBSE exams objective type कि बोले दिखाएंगे कि भाई ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है. तो you have to interpret the graph according to the shape of the graph. Okay, so today we stop here at this point, that instant of time. Okay, in the next class we'll be discussing the object अंडर फ्री फॉल और रिलेटिव वेलोसिटी हम इसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू.